عقل دنگ ہے چرخی میں آسمانی ہے، آسے کی عقل دنگ ہے چرخی میں آسمانی ہے، جانی مراد اب کدھر ہائے تیرا مقام ہے، آسے کی عقل دنگ ہے چرخے میں آسمان ہے، جانی مراد اب کدھر ہائے تیرا مقام ہے۔ اللہ اکبر۔ عرش کی بھی عقل دنگ ہے اور آسمان بھی سوچ میں ہے، جانی مراد اب کدھر ہائے تیرا مقام ہے، یعنی سرکار کے مقام کدھر ہے، سرکار کہاں جا رہے ہیں، اس شعر سے یعنی معراج شریف کی طرف اشارہ کر رہا ہے، یعنی سرکار کہاں گئے، لا مقام پہ گئے۔ اللہ اکبر۔ اسی اعلیٰ حضرت تو اسی لیے دوسری جگہ فرماتے ہیں، وہ نبی وہی لامکاں پھر مکی ہوئے سرے آسے تخت نسی ہوئے، وہی لامکافر مکی ہوئے سرے آسے تخت نسی ہوئے، وہ نبی ہے جس کا ہے یہ مقام، وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہوں تو کچھ نہ ہوں، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہوں تو کچھ نہ ہوں، جانے ہے وہ جہان کی، جانے ہے تو جہان ہے۔ سید اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، اس حدیث کی طرف سید اعلیٰ حضرت کا اشارہ ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، لولا لک لما خلقت اظہرت ربوبیتا، اے محبوب اگر تجھے پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو ہم اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہیں کرتا۔ اللہ اکبر۔ یعنی جو کچھ بھی ہے نبی کے صدقے میں ہے، اور سرکار اس حدیث کی طرف بھی اشارہ ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام مٹی اور پانی کی منزل طے کر رہے تھے۔ اللہ اکبر۔ اور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی اس طرف بھی اشارہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم اس جہاں کی کیا فرماتے ہیں، جان ہے جہان کی، اس جہان کی یعنی جان ہے، جب تک سرکار رہیں گے یہ دنیا رہے گی، اور جب سرکار چلے جائیں گے تو دنیا ختم ہو جائے گا۔ اس سے پتہ یعنی سرکار کی حیات کے بھی اعلیٰ حضرت نے اس شعر سے سرکار کے حیات کی طرف بھی اشارہ کر رہے ہیں، یعنی سرکار اب بھی جسم و جسمانیت کے ساتھ باحیات ہیں، ہماری آنکھ ایسی نہیں ہے کہ ہم دیکھ نہیں سکتے، تو اسی لیے تو اعلیٰ حضرت دوسری نعت شریف میں اس طرح سے ساتھ فرماتے ہیں، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشمے عالم سے چھپ جانے والے، یعنی اعلیٰ حضرت قسم حق کہتے ہیں کہ خدا کی قسم آپ زندہ ہیں آقا، لیکن یہ میری آنکھ سے آپ چھپے ہوئے، میں دیکھ نہیں سکتا، دنیا کی آنکھ سے میں دیکھ نہیں سکتا، میرے آنکھ سے چھپے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور معراج شریف کی طرف بھی اشارہ ہے، جب یعنی
किसी चीज़ का जान निकल जाए तो क्या होता है। मिसाल के तौर पर ये दीवार घड़ी है, उसमें बैटरी लगी हुई है, जब तक बैटरी में जान है तो घड़ी चलेगी, और जब जान ख़त्म हो जाए तो घड़ी वहीं का वहीं रुक जाएगी। फिर आप उसमें बैटरी डालिए, सेल लगाइए उसमें, तो फिर जहाँ रुकी है वहीं से चालू होगी। ये नहीं कि 12 बजे मेरा घड़ी रुका था, अब हम 4 बजे इसमें सेल लगाते हैं तो अब मेरी घड़ी 4 बजे से चालू होगा, नहीं, आपका वो दीवार घड़ी 12 बजे से चालू होगा। यानी इसका मिसाल ये है कि उस घड़ी की जान निकल गई थी, इस वजह से वहीं रुक गया था। इसी तरह सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज में चले गए तो इस जहां की तो जान निकल गई, अब ये दुनिया वहीं का वहीं रुका हुआ रह गया, यहाँ तक कि जंजीर भी हिलती रही और बिस्तर भी रहा गरम। एक पल में गए और आए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह अकबर। बैतुल मुक़द्दस जाना और वहाँ नमाज पढ़ाना, फिर सातों आसमान का शेयर करना, और फिर यहाँ तक कि जन्नत व जहन्नम का शेयर करना, फिर रब से हम कलामी, और इतनी जल्दी, मतलब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, यानी इस दुनिया का निज़ाम वहीं रुक गया था, यानी सरकार इस जहाँ की जान है। अल्लाह अकबर। सैयद आला हज़रत फरमाते हैं, आसे पेता जा छेर छार फरसे पे तो फाधूम धाम, आसे पेता जा छेर छार फरसे पे तो फाधूम धाम, कान जिधा लगाइए तेरा ही दास्तान है। अल्लाह अकबर। यानी अरसे में भी सरकार का चर्चा और फर्श में भी धूम मची है सरकार की। कहीं भी जाइए, कान लगाइए, सरकार ही की जिक्र है। कुरान में सरकार का तज़किरा, और मस्जिद के मीनारों से सरकार की आवाज़ बुलंद हो रही है, सरकार के नाम पुकार रहे हैं मुअज्जिन, और इमाम भी जब मुसल्ला में जा रहे हैं तो सरकार की नाम बुलंद करते हैं। और हम भी नमाज में सरकार को कभी सलाम भेजते हैं तो कभी सरकार के नाम आता है कुरान में, उसकी किरत करते हैं। और जहां भी जिस तरफ भी यानी कान लगाइए, हर तरफ सरकार का ही चर्चा है। अल्लाह अकबर। तो इससे ये पता चला कि सरकार की अज़मत और रिफ़त हमारे लिए फ़र्ज है, और हमारा ईमान उस वक्त तक मुकम्मल नहीं हो सकता जब तक सरकार से मोहब्बत ज़्यादा ना हो। जबकि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद फरमाते हैं, मिशकात शरीफ की हदीस है, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ला युमिनुना अहदुन हत्ता अकूना अहब्बा अलैहि मिन वलदिही व वालिदिही वन नास अजमईना, के उस वक्त तक तुम मोमिन कामिल नहीं हो सकते जब तक अपने बाप से ज़्यादा, अपनी औलाद से ज़्यादा, अपने पूरे ऐसो अकारिब से ज़्यादा मुझसे मोहब्बत ना कर ले। और इस हदीस को मिशकात शरीफ में नकल किया है, और यही हदीस बुखारी और मुस्लिम में भी है। तो मेरे दोस्तों, सरकार की अज़मत और मोहब्बत हमारे लिए ज़रूरी है। और आला हज़रत मख्ताम इरशाद फरमाते हैं, खौफ ना रख राजा जरा, तो है आबदे मुस्तफा, खौफ ना रख राजा जरा, तो है आबदे मुस्तफा, तेरे लिए आमान है, तेरे लिए आमानी है। अल्लाह अल्लाह। सैयद आला हज़रत फरमाते हैं, अपने तरफ मुखातब होकर फरमाते अपने आप को, ए रज़ा तो क्यों खौफ करता है, तो अब्द मुस्तफ़ा है, तो मुस्तफ़ा ज़ान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ग़ुलाम है, तो फिर तुम्हें खौफ क्या है। अल्लाह अल्लाह। लेकिन मेरे भाई, आला हज़रत अपने आप को ग़ुलाम कर रहे हैं तो ग़ुलामी का वो सबूत दी हैं, सरकार की
सुन्नत पे अमल किए हैं, अपने सीने में इसके रसूल का सम्मा जला करके गए हैं। अल्लाह अकबर, उस सम्मा से आज हमें भी रोशनी मिलती है। अल्लाह अकबर। लेकिन मेरे भाई, हमें अपने दिल में सोचना पड़ेगा, क्या हम सरकार की गुलाम कहलाने के लायक हैं? अल्लाह, हमारा किरदार देखिए, आज हमारे अंदर कौन सी गुनाह नहीं है, हम कितने बड़े बड़े गुनाह करते हैं। मेरे भाई, दिल में जरा हाथ रख के सोचिएगा, क्या हम सरकार के गुलाम कहलाने के लायक हैं? मेरे भाई, हमें सरकार की सच्चा पक्का गुलाम बनना पड़ेगा। अल्लाह अकबर, आका के कहने पे चलना पड़ेगा। अल्लाह अकबर। सरकार दौर में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं? कुर्रतु ऐनी फी सलात, मेरी आंखों की ठंडक नमाज में रखी गई। तो हम नमाज ही से आज दूर हैं, हम सरकार की आंखों को ठंडक नहीं पहुंचाते हैं। जब नमाज नहीं पढ़ेंगे तो सरकार की आंखों की ठंडक कैसे पहुंचेगी? सरकार की आंख को ठंडक कैसे पहुंचेगी? और सरकार हमसे कैसे राजी होगा? अल्लाह अकबर। तो मेरे दोस्तों, नमाज कायम कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि और लोग भी सुन करके अमल करें। और जो अब तक मेरे पेज को फॉलो नहीं किए, फॉलो कीजिएगा। और जो यूट्यूब में सुन रहे हैं, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।